Hello. Hello, Vansh. Hello, Varsha. Can you hear me? Yes, sir. Good morning. Good morning. Good morning. Hi, Vansh. How are you? Hello, Ria. Can you hear me? Yes, sir. Good morning, sir. Good Good morning. Good morning, morning. ma'am. Good morning. Good morning, everyone. So, I just wanted to meet you all on your first day. It's the first lecture, of course, but I just thought of saying hi and wishing you all the best for the upcoming lectures that you all are going to take. I will, of course, see you tomorrow. It would be great if you all switch on your cameras for me to see you all. Some of you all I've never seen you all. So, and yes, it would be more interactive if we could see you all and see your expressions. But all in all, wish you a very, very, very best of luck. Okay. I will see you, of course, tomorrow in my lecture. Hope you have fun in the whole series, and we will make sure that you have fun in the whole series. Okay. So over to you, sir. Bye, everybody. Have fun. Just wanted to say hi, Savitri. Bye. All the best. We'll just wait for a minute or two and then we'll start, okay? Hello, everyone. We'll start the lecture. Let's not wait anymore. Please switch on the camera so that I can just see you once and then you can switch it off. It's fine. It will be great अगर आप on ही रखो तो. Hello, Ria. Nice seeing you after so long. Hi, Varsha. काफी दिनों बाद. Hi. Hello, Yes. hello. Okay, chalo, we'll start with the session. Our topic for today is basics of biology or biobasics, right? Let's see kya hai ye biobasics. So today I'm not going to start away with your syllabus as such. ये थोड़ा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, सो हम थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे. There are certain terms which I want you guys to know, and there are certain things that ideally any student who is studying bio should know. So that all parts we'll be doing today. Okay, I'll just share my screen. Okay. Yeah, as you all know, NEET paper and about the pattern, it will be 720 marks and 360 for biology, 360 for physics and chemistry. I think so that part is clear. For every right question, you get 4 marks. For every wrong question, you lose your 1 mark. So wo sara part I'm not going to take it. I assume that you guys know that. So let's start with today's topic, that is basics of biology. Okay. Firstly, what is biology and what bio means to us? Let's see that. For me, if you tell me this is what is giving me bread and butter and everything right now, and this is the subject that I love. Okay. The reason why we breathe, the heart pumps and the brain thinks, ये सारी चीजें bio से है. From yogurts to pizzas to wine to sanitizers to everything that is vaccines and much more. Whatever right now we are going through, biology is that subject which is helping us to navigate in this entire situation right now. Okay. Don't worry, today we won't start with syllabus. आज हम थोड़े से ना bio के terms वगैरह पढ़ेंगे. So that is why the first lecture is important. Okay, जैसे पायलट एपिसोड होता है हर सीरीज में, वैसे ये पायलट लेक्चर है. ओके, तो यहाँ पर हम थोड़े से कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करेंगे और थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टोरी देंगे. कूल. चलो, लेट्स सी बायोलॉजी. व्हाट डज बायोलॉजी मीन? इट इज अ ग्रीक वर्ड. ओके, ग्रीस से आता है ये. बायोस मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी. सो बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ लाइफ एसेंशियली. इन टुडेस लेक्चर we'll see biology in and around us. हमारे आसपास कितनी biology है, what all things are present in and around us. Then we'll study why are we having this lecture online. Okay, COVID-19 के बारे में पढ़ेंगे. There are many things that
still there is not known. Don't worry, मैं आपको बोर नहीं करूंगा कि क्या चीजें चल रही है, क्या होना चाहिए. I'll just tell you the basics thing जो नहीं पता है लोगों को. Does anybody of you know the full form of COVID? Anyone? Riya, Varsha, Vansh? कोविड का फुल फॉर्म पता है आपको? यस? No, sir. ओके, ये भी देखेंगे हम क्या है. विल सी हाउ वैक्सीन्स आर मेड. ओके, लेट मी टेल यू, हम पूरा सा डिटेल में नहीं जाएंगे. आई जस्ट टेल यू व्हाट एग्जैक्टली वैक्सीन्स आर एंड व्हाट ऑल थिंग्स आर गोइंग ऑन. ओके, तो ये बहुत ही बेसिक सा कंटेंट होगा. ओके, अगेन ये कंटेंट इंपॉर्टेंट है. व्हाई? बिकॉज यू आर लर्निंग बायोलॉजी एंड ट्रस्ट मी, what I have noticed is many people, especially even people who are appearing for NEET, my students who are currently appearing for NEET, उनको भी बहुत सारी basic चीजें नहीं पता है. And there is where the application based knowledge is important. You should know what you're studying and you should be able to apply it. अगर मैं बायो का स्टूडेंट हूँ और अगर मुझे यही बेसिक चीजें नहीं पता, आई एम नॉट supposed to study biology, is what I feel. That is the most essential thing. Okay, because what I feel is, according to me, there will be one question which will be coming this year, which will be related to vaccines or COVID-19. Although आप सभी लोग ये बायो नीट नहीं दे रहे हो, but still basic things आपको पता होनी चाहिए. Then we have, just a second. Some problem. Just give me a minute. Yeah. Vaccines, the current situation, what are we facing right now and where are we heading? Okay, I don't think so आप में से किसको भी अब तक वैक्सीन मिला है या वैक्सीन का एक भी डोज का कुछ मिला है. Some of you are not even eligible, right? Okay, basic terms related to biology, this is what is important in today's lecture, or I can say the most important part, because ये part आपका syllabus से related है, because there are certain terms which you need to know. Till grade 10th जो चीजें आप डिफाइन करते थे, जो जिस तरह से आप पढ़ते थे, दैट इज नॉट हाउ विल स्टडी राइट नाउ. राइट नाउ द थिंग्स विल बी स्लाइटली मोर साइंटिफिक, स्लाइटली मोर अप टू द टेक्सचुअल कंटेंट ज्यादा होगा. आपको थोड़े से टर्म्स पता होने चाहिए. तो दैट ऑल विल लर्न टुडे, एंड ऑब्वियसली विल सी व्हाट द सिलेबस इज एंड व्हाट द बुक लुक लाइक. व्हाट इज बायोलॉजी? Anything that is living is biology. तो हमारे आसपास जो भी चीजें जिंदा है, everything which is there in and around us is biology, right from the smallest things. So in fact, our entire body is not just biology, but everything in and around our body is microorganism, and that is also biology. So if you see nose, mouth, everything has bacteria. Our stomach has bacteria, vagina has bacteria, gut has bacteria, skin has bacteria. ओके, यहाँ पर जो इमेज में आप देख रहे हो, ऑल द बैक्टीरिया विच आर मेंशन्ड हियर, दिस आर नॉट हार्मफुल बैक्टीरिया. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो पैथोजन क्या होता है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं. पैथोजेंस आर द वन विच विल क्रिएट दैट डिजीज कॉजिंग थिंग टू अस और विच विल हार्म अस. ओके, ये जो यहाँ पर है, दे आर ऑल आर गुड बैक्टीरिया, ये हमारे फ्रेंड है. ठीक है, बीट वजाइना के अंदर का माइक्रोफ्लोरा विच प्रोड्यूसेस दैट एसिडिक पीएच. ओके, स्किन के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमारे सबके ऊपर स्किन के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, थैंक्स टू दिस सैनिटाइजर वो लोग धीरे धीरे मर रहे हैं, बट अभी हमें वायरस से बचना ज्यादा जरूरी है, इसलिए हम सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं. आइडियली एक्सेसिव यूज ऑफ सैनिटाइजर इज बैड ऑन अ लॉन्ग टर्म, बट राइट नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज सैनिटाइजर. ओके, तो ये मत करना कि सर ने बोला है सैनिटाइजर नहीं यूज करना है. ओके, सैनिटाइजर से माइक्रोफ्लोरा किल होता है, विच कैन बी हार्मफुल ऑन अ लॉन्गर रन. Then we have gut microflora. Gut is intestine, where you have your vitamin producing bacteria, you have enzyme producing bacteria, which makes probiotics and everything.
माउथ एंड थ्रोट में भी बैक्टीरिया होता है. दे हेल्प at certain times to kill the pathogenic bacteria which might be present in the food. This is what different kinds of microorganisms look like. This I think so you must have seen. This is Paramecium. Okay, or you can say this can also be E. coli because Cilia flagella dono hai. Okay, this is amoeba, this is Volvox, this is Bacillus. So there are different types of bacteria and microalgae is present here. They are all microorganisms. This is the GIF which I have shown here. What you can see here, water-like substances, they can be WBCs of our body or they can be any amoeba kind of cells. And जो आप rod shape देख रहे हो ये bacteria है. So it is basically engulfing bacteria. Obviously this video is speeded up, तो इतना fast नहीं होता है, but yes it can engulf the bacteria and you can see जब वो engulf करता है it actually digest the entire thing. तो पूरे के पूरे बैक्टीरिया जो बैसिलस रॉड सेल्स हैं उनको डाइजेस्ट कर देता है. इज दिस क्लियर? Yes, sir. Then this is fungus on a plate. Okay, and this what you can see here, this is micro as in bacterial colony and this is fungus. Okay, फंगस के बारे में भी हम देखेंगे. आजकल बहुत फ्लेवर वाले फंगसेस आए हैं मार्केट में, उनके बारे में भी विल सी what all type of funguses are there. And this is again as you can see this part moving, this may be some kind of microalgae and this is also Volvoxic colonies. So this is pond ecosystem and this is lab ecosystem. Lab में on a plate you can grow bacteria and fungus. Okay, जो cotton ही दिख रहा है that is all fungus और ये जो आप देख रहे हो जो opaque part है that they are bacteria. सो ये तो हो गया लैब में और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में. अब हम देखेंगे मैक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है. ओके, विल सी व्हाट एल्स इज देयर इन बायोलॉजी. ऑब्वियसली वी हैव प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, आई डोंट नो इफ यू हैव नोटिस्ड और नॉट, जब हम मानसून में चलते हैं तो हमारे बिल्डिंग के पास भी जो टाइल्स के बीच का गैप है वहां पर भी ग्रास ग्रो होने लगता है, राइट? अब वो ग्रास के बारे में सिर्फ सोचो, दैट इज अ टेम्पररी ग्रास. वो सिर्फ रेनी सीजन में ग्रो करेगा. थ्रू द ईयर इट इज नॉट गोइंग टू स्टे देयर. ठीक है, वो लाइन में, वो दो टाइल्स के बीच वाली लाइन में ग्रास इज ग्रोइंग. वहां पर छोटे छोटे इंसेक्ट्स होंगे, उनको खाने के लिए छोटा छोटा बर्ड्स आएगा. ओके, तो सिर्फ वो लाइन ऑफ टाइल्स में देयर इज अ माइक्रो इकोसिस्टम गोइंग ऑन. ऑब्वियसली ये मैं उन ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहा हूँ जो मुझे आंखों से दिखाई देगा. ऑब्वियसली वो टाइल्स के बीच में सॉइल होगा, वहां पर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे. ऑल दैट पार्ट आई एम नॉट कंसिडरिंग हियर. यहाँ पर मैं सिर्फ वो ऑर्गेनिज्म देख रहा हूँ जो मैं नेकेड आई से देख सकता हूँ. ऑल्दो दिस इमेज इज वेल नीट एंड टाइडी इमेज. तो यहाँ पर भी ये पूरा इकोसिस्टम चल रहा है. यहाँ पर ग्रास है, ग्रास के रूट्स यहाँ पर स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट्स होंगे. ओके, सो कॉल्ड आर्थ्रोपोडा वाले होंगे. आर्थ्रोपोडा इज जॉइंटेड एपेंडेजेस, राइट? क्लास 9th या क्लास 10th में होगा आपको. वो इंसेक्ट्स होंगे, उनको कंज्यूम करने वाला कोई बड़ा इंसेक्ट होगा, उनको कंज्यूम करने वाला शायद कोई बर्ड होगा या कोई दूसरा रेप्टाइल आके उनको कंज्यूम करेगा. सो यहाँ पर भी इकोसिस्टम चल रहा है, यहाँ पर भी बायोलॉजी है. ओके, ऑब्वियसली यू हैव स्मॉल स्मॉल प्लांट्स, दे आर कॉल्ड सक्यूलेंट्स. ऑल द प्लांट्स व्हिच आर हियर दे आर कॉल्ड एज सक्यूलेंट्स. ओके, इसमें आपका अलोवेरा भी आता है. ओके, सक्यूलेंट प्लांट्स आर डेजर्ट प्लांट्स or xerophytic plants. Okay, so they require very less water and you can see they are all fleshy and thick, which means they store a lot of water in them and stomata nahi hoga, to ye unka adaptation hai. Although okay, whatever part we are doing today, ye sab kahin na kahin 2 year का जो आपका जर्नी है वहां पर आपको यूज होने वाला. ओके, तो जो भी आप चीजें यहाँ पर देख रहे हो, बीट माइक्रो इकोसिस्टम्स, बीट सक्यूलेंट प्लांट्स, all these things will be there in detail in the 2 years journey that you will be embarking on. Then we have the world's largest tree. तो ये छोटे ट्रीज के बारे में होगा, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्री है. आई होप यू कैन सी दिस, हाउ लॉन्ग इट इज, राइट? साइज पता नहीं चल रहा है ना कितना बड़ा होगा. लेट्स सी द नेक्स्ट इमेज. आई थिंक सो दैट विल बी मोर अप्रोप्रिएट. यू कैन सी ये नॉर्मल इंसान का हाइट है जो उसके यहाँ पर खत्म हो जाता है. Imagine the height of this plant. I can ideally put more than 50 humans like this on top of each other. Till then also the height of the plant will not be completed.
This is the world's largest tree. That is the red coast tree of California. It is a type of gymnosperm. ये भी आपको आएगा आने वाले चैप्टर्स में. Okay. See, you can also see this man lying here. उसका height roots तक ही खत्म हो जा रहा है. The plant cannot come in one frame. That huge is the size of this tree. If I compare with any other monument, Statue of Liberty पता है आपको? You know Statue of Liberty? Statue of Unity नहीं है, Liberty, USA वाला. Statue of Liberty का 2 से 3 times बड़ा ट्री है ये. तो Statue of Liberty को एक के ऊपर एक में अगर रखूँ 2 या 3 बार, तब जाके ट्री का हाइट खत्म होगा. That huge is the height of tree. Imagine करो, ट्री वाटर लेते थ्रू सॉइल, रूट्स के थ्रू ऊपर जाएगा, राइट? इमेजिन कितना सारा पानी इसके अंदर जा रहा होगा थ्रू आउट द, क्या प्रेशर होगा रूट का कि वो ऊपर तक खींच रहा है पानी. व्हाट विल बी द ट्रांसपिरेशनल पुल बाय दिस लीव्स कि वो इतना सारा अमाउंट ऑफ वाटर ऊपर तक कंज्यूम करके लेके जा रहे हैं. दैट इज द ब्यूटी ऑफ बायोलॉजी. Then let's talk about animals. Okay, this is a insect which is a parasitic insect in the human eye. This is called loa loa. Okay, some people might find this image disturbing, but I just wanted to show how insects can live inside the eye also. This is the more zoomed up version. This is not of the eye obviously. ये plate के ऊपर या एक medium के ऊपर हम जब grow करेंगे, it will move. It is called loa loa. Even this part we'll study. This chapter is in 12th standard. Okay, then we also have normal pets like rat, cats and dogs. They are also a part of living world. And then we have the beautiful whale. Okay, size reference के लिए we have a human ear and the entire whale ear. Let's move further about COVID-19. Okay, COVID-19 का full form. कोई would anyone like to try क्या है COVID-19? 19 क्या है? चलो ये तो guess कर ही सकते हो. What is 19? Anyone? Vansh? Riya? Any idea what is 19? Yes. Okay. So 19 is anyone who's trying? Sir, is it a variation of COVID? Nope. Nope. तो पहले 18 को, अच्छा ये आप ऐसे समझो, धूम 1, धूम 2, धूम 3, वैसे कोविड 1, कोविड 2, कोविड 3, कोविड 19 वैसा. सोचो. You're going on the right track. Maybe you'll find it. Not the number, definitely not the variety strain. Anything else? Yeah. It is the year in which this virus came. Okay. The year in which virus came, that is 2019. And the full form is Coronavirus Infectious Disease 2019. Okay. तो थोड़ा सा ट्राई करते तो शायद मिल जाता था. COVID is Coronavirus Infectious Disease 2019. Okay. Now what does this word corona mean? Corona का कुछ मतलब होगा? What is corona? Yes, 2019 was right. Corona, anybody? What is corona? Corona बहुत सारी चीजों को बोला जाता है, right? There is also a brand of beer which is Corona. What does this corona mean? I'll give you a hint. I'll say a sentence. The coronation ceremony of Shivaji
After the coronation ceremony, he was called as Chhatrapati Shivaji. Can you get any reference from coronation? Corona means crown. Okay, corona means crown. And by crown, why do we call this crown? Because it has spike proteins. आप सबने वो इमेज देखा होगा शायद कोरोना का, किस तरह से वो दिखता है, how does it actually look like? Okay, so it has certain spike proteins. It has ssRNA. ssRNA as in, see, viruses just have genetic material and protein covering. वायरसेस के पास सिर्फ एक जेनेटिक मटेरियल होगा, यानी न्यूक्लिक एसिड होगा और एक प्रोटीन की कवरिंग होगी. दिस जेनेटिक मटेरियल इज सिंगल स्ट्रैंडेड राइबोन्यूक्लिक एसिड. जैसे हमारे पास डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, यानी डीएनए होता है, वैसे ही ये वायरस के पास राइबोन्यूक्लिक एसिड है, एंड इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड राइबोन्यूक्लिक एसिड. ट्रस्ट मी, जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तब आपको शायद थोड़ा और बेटर तरीके से समझेगा कि क्यों कोविड-19 का वैक्सीन बनाना इतना डिफिकल्ट है, या क्यों इतना ये इजीली ठीक नहीं होता है. ओके, बिकॉज आरएनए हैव द प्रॉपर्टी टू चेंज और म्यूटेट. इट इज ओके, इफ यू हैव सीन एनी रिपोर्ट तो उस पे लिखा होता है SARS-CoV-2. अब ये जो 2 है ना, ये वेरिएशन. ओके, वंस दिस इज द 2 अबाउट द वेरिएशन. तो पहले SARS-CoV था, दैट वाज सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम ड्यू टू कोरोना वायरस. That happened in 2 parts. That one happened in Middle East, तो उसको MERS वायरस कहा जाता था, that is Middle Eastern Respiratory Syndrome. Then एक SARS था जो साउथ एशियन कंट्रीज में था, साउथ एशियन कंट्रीज में, तो साउथ एशियन रेस्पिरेटरी सिंड्रोम बोलो या सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम बोलो. तो 2 वैरायटी थी कोविड की ही. ओके, दिस वाज आई थिंक सो इन 2015-16 में था, बट इट वाज नॉट अ पेंडेमिक बैक देन. तो वो एक पर्टिकुलर एरिया तक ही था, सो नथिंग मच हैपेंड. But in 2019 it started going global. Okay, और हमारा वायरस as in virus became famous, and that is why हमको सबको evolve होना पड़ा, right? You guys, the entire school life you studied for that one SSC or HSC or CBSE का 10th or you know result of your ICSE boards, but वो भी नहीं हुआ. So this is all due to this virus. We have to evolve everything. So SARS-CoV-2 is severe acute respiratory syndrome. ये acute का मतलब क्या है? That is also we'll learn today only. Severe as in the severity is much more. It is much more potent. बहुत dangerous है वो. Okay. And why are viruses difficult to cure? This I'll explain very much in brief because I want you guys to learn about virus and then think about yourself कि क्यों इतना difficult है. I'll just give you one example. ये single stranded RNA है. And as I told you, it keeps on changing. And how our immunity works is, हमारा immunity particular virus के against या particular antigen के against, particular foreign body के against कुछ चीजें बनाता है, that is called antibodies. तो imagine करो, ये है virus का structure मेरे body के अंदर. तो ये virus है, तो मेरा body इसके against ऐसा टाइप का हथियार बनाएगा जो उसको पकड़ के it can kill it. Okay, virus ऐसा है, मेरे body ने ऐसा बनाया, ठीक है, खत्म हो गया virus. But what happens because of this ssRNA ना, viruses keep on changing. तो पहले जो वायरस ऐसा था वो ऐसा बन के आएगा. अब मेरे बॉडी का ये वाला जो हथियार है वो इसके लिए काम नहीं आएगा बिकॉज वो इसके लिए था. नाउ माय एंटीबॉडीज डू नॉट नो कि ये और ये दोनों सेम है. तो मेरा बॉडी फिर से इसके जैसा एक शेप का हथियार बनाएगा या एंटीबॉडीज बनाएगा टू यू नो गेट होल्ड ऑफ दैट वायरस एंड किल इट. बट दैट इज नॉट पॉसिबल. उसके लिए टाइम लगेगा. दैट इज द रीजन वायरसेस आर वेरी मच डिफिकल्ट टू क्योर. In general भी, just a simple example, think about it, how smart is the virus. Okay, आप hopefully 1.5-2 साल से घर पे हो, everybody is at home, right? Okay, every year you must be having that seasonal flu या viral flu होता था कोविड के पहले तक. बट जब से ये कोविड आया, आपको किसी को भी viral flu हुआ है? नॉर्मल फ्लू? anybody in your family apart from covid कोई नॉर्मल viral flu के लिए गया है? सीजनल चेंज में जो फ्लू होता था उसके लिए गया है हम? Anybody who has visited the doctor for seasonal flu? Varsha, Riya, Vansh? No, sir. No, sir. No, why? कभी सोचा है? वैसे तो every 6 months 7 months घर में से किसी ना किसी को तो वायरल फीवर हो ही जाता था. Which means virus, this COVID virus
has competed with all the other virus which was present and it is winning over it. इसलिए बाकी सारे वायरस इनएक्टिव हो चुके हैं. जस्ट इमेजिन क्या स्पीड पे ये वायरस इवॉल्व हो रहा है. ओके, एंड दैट इज द स्पीड दैट वी हैव टू मैच अप. एंड ऐसा नहीं है कि ह्यूमंस इवॉल्व नहीं हो रहे. इफ यू आर अप टू डेट विद द न्यूज, ओके, जो न्यूबॉर्न बेबीज है जो ये कोविड टाइम में पैदा हुए, उनके पास कोविड के अगेंस्ट एंटीबॉडीज ऑलरेडी बनी है. सब में नहीं, बट कुछ बच्चों में ऑलरेडी एंटीबॉडीज बनी है, विच मीन्स एज ह्यूमंस हम भी इवॉल्व हो रहे हैं. एंड दैट इज द मैजिक ऑफ इवोल्यूशन, दैट हमें पता भी नहीं है कि हम इवॉल्व हो रहे हैं. ओके, देयर इज अ चैप्टर इन 12th अबाउट इवोल्यूशन. इट्स अ ब्यूटीफुल चैप्टर. ओके, वहां पर हम ये इवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं कि कितना मैजिकल है कि इवोल्यूशन कंटिन्यूसली होता है एंड वी डोंट इवन नो अबाउट इट. वी आर अ पार्ट ऑफ प्रोसेस. ओके, एंड बिकॉज वायरसेस कीप ऑन चेंजिंग, उनका ये जो क्राउन स्ट्रक्चर चेंज होता है, उनका क्राउन चेंज होता है, स्पाइक प्रोटीन चेंज होता है, इसलिए दे आर डिफिकल्ट टू क्योर. कूल. The size is 20 nanometers. Okay, I think so. I must have told this to my few students. 1 nanometer is 10 raised to minus 9 meters. Okay, मतलब 0.00000001 मीटर. ओके, अब ये 10 raised to minus 9 ना ऐसे सुनने में अजीब लगता है कि क्या होगा. I'll try to explain analogically. Okay, take a stand of your hair. अगर मैं अपने स्टैंड ऑफ हेयर को लूँ, सपोज एग्जांपल मेरा स्टैंड ऑफ हेयर ये मोटा है, ठीक है, मेरे इतने मोटे घने बाल है, ऑल्दो है नहीं, जस्ट इमेजिन आई टेक अ स्टैंड ऑफ माय हेयर एंड इट इज दिस थिक. ओके, इफ आई कट इट दिस वे, दैट इज आई टेक LS, लैटरल सेक्शंस लूँ मैं. इस तरह से कट नहीं करना. आई डोंट हैव टू कट इट दिस वे, आई हैव टू कट इट लेंथ वाइज. ओके, I can't hold my hair, इसलिए मैं ये पकड़ रहा हूँ. But the size of your hair, if you cut it this way, you will have to make around 10 lakh sections. तब जाके आपको 1 नैनोमीटर मिलेगा. That is the size of 1 नैनोमीटर. Imagine करो कितना छोटा है वो. और ऐसे आप हेयर का स्टैंड लोगे, उसके 10 लाख पीसेस करोगे, उसमें से 20 पीसेस लोगे, तब जाके आपका 20 नैनोमीटर बनेगा. So the size of nanometer is that small. इनफैक्ट इट इज सो स्मॉल कि हमारे सेल को या हमारे WBCs को, जो हमारी एंटीबॉडीज है या जो हमारे इम्यून सिस्टम वाले सेल्स है, दे डोंट इवन रिकॉग्नाइज कि कुछ बाहर से आया है, बिकॉज इट इज सो स्मॉल दैट इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय आवर बॉडी वेरी इजीली. ओके, देन यू मस्ट हैव सीन दिस इमेज. ओके, दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग अबाउट. दिस इज द क्राउन प्रोटीन. तो अभी हमारे पास सपोज ये है, तो हमारा बॉडी ये क्राउन प्रोटीन के अगेंस्ट हथियार बनाएगा. अब फिर वो चेंज हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी. सी, दिस इज हाउ इट लुक्स. ओके, दिस इज मे बी नॉर्मल बैक्टीरिया सेल्स एंड दिस इज जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पसेस. सो द क्राउन इज मच मोर लार्जर देन द एंटायर न्यूक्लियोप्रोटीन. Then this is the most famous image that you must have all seen it somewhere or the other. अब ये देखो, this part ना, this is crown protein और spike protein. यही प्रोटीन की वजह से उसका नाम दिया है कोरोना वायरस. ओके, अब सपोज ये शेप में है, ये वाले शेप में है, पहले ये शेप में आया, फिर वो चेंज होकर ये शेप हो गया, तो मेरे बॉडी को फिर से ये शेप का एंटीबॉडीज बनाना पड़ेगा, फिर वो चेंज होके ऐसा हो गया. एवरी टाइम वो हेयर स्टाइल चेंज करके आता है और मेरे बॉडी को नया 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 बनाना पड़ता है. ओके, दैट इज व्हाई वी आर ओवरकमिंग सेकेंड वेव, थर्ड वेव, you know, all such kind of things, because the virus has a property to keep on changing, and that is majorly due to the single stranded RNA particles. Is this clear? Yes. Now I think so you can say to your friends, या घर पे बोल सकते हो, अच्छा ये क्यों हो रहा है पता है क्या, ये इस तरह से हो रहा है, या वो वायरस चेंज करता है. कोरोना का मतलब क्राउन होता है. ओके, and what I feel is you should, whatever subject you like, whatever things you are studying, you should be up to date with your knowledge, with whatever is going in and around the world. Right now also, whatever is happening in and around biology, as a ardent learner of biology, I should know कि क्या हो रहा है, क्या researches चल रहा है. Although मेरे syllabus में हो या ना हो, that is how you learn anything. Okay, तो ये सब चीजें essential चीजें जो आपको पता होनी चाहिए. Okay, this session is going to end in a minute or two, and before starting the vaccine part, I'll end this session here. You can join with the same link and then we'll continue with the session. Cool.
I hope यहाँ तक you are enjoying it. You are learning something new. चलो, just join with the same link in the next class. Okay, we'll continue with vaccines. So this is a spike protein जिसकी वजह से नाम आया है कोरोना. And for this we are trying to make vaccine and we have made vaccine. But if it changes, we don't have the assurity whether the vaccine may or may not work. Okay. Let's see the vaccine. What exactly is vaccine? See, anything that enters my body will try to protect itself by making antibodies against it. जो भी चीज मेरे बॉडी में एंटर करेगा, ओके, जो मेरे बॉडी के लिए हार्मफुल होगा, माय बॉडी विल प्रिपेयर समथिंग व्हिच कैन किल दैट और व्हिच कैन डिसआर्म दैट, उसको इनएक्टिव कर देगा, उसको वीक कर देगा. बट फॉर दैट माय बॉडी रिक्वायर्स टाइम. ओके, and it is a beautiful thing of our body that we have immune system which actually helps making any kind of antibodies. Okay, if the body is healthy, we have many parts in our body. We have bone marrow, we have thymus, we have lymphoid organs which help in making these antibodies. So agar koi, suppose for example, I'll give you example of polio virus or polio vaccine, right? जो 2 बूंद जिंदगी के हैं, we all have taken that polio vaccine. That vaccine itself contains polio ka virus, but that polio ka virus is in a weak or inactivated form. So when it enters my body, मेरे body को नहीं पता कि वो weak form या inactivate form में है. So my body prepares all the हथियार and all the antibodies against that. तो मेरे body वो polio vaccine को खत्म कर देता है as in kill कर देता है वो जो भी virus होगा उसको. Also मेरा body वो सारे हथियार का copy बना के रखता है. See, in general, if you have played a cricket match, okay, between you guys and the adjacent building, ठीक है, तो अगर आपने पहले कभी खेला है तो आपको पता है कि वो पर्टिकुलर बैट्समैन कैसे आउट होता है या किस तरह से शॉट मारता है. अकॉर्डिंगली आप उसको बॉल करोगे, या एज अ बैट्समैन आपको पता है कि वो कहाँ बॉल डालता है, तो अकॉर्डिंगली आप उसको हिट करोगे. द पॉइंट इज, अगर पहले से एक्सपोजर है तो योर बॉडी नोज हाउ टू किल इट. तो जब हम वैक्सीन लेते हैं, वी आर डूइंग द सेम थिंग. वी एड inactivated or killed virus or parts of that particle जो हमारे बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट कर सकता है. एक बार इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट हो गया, फिर भले ही असली वाला कोविड आ जाए, बट मेरे बॉडी के पास एंटीबॉडीज या मेरे बॉडी के पास वो वेपन्स रेडी होंगे टू किल दैट अपकमिंग वायरस. क्लियर? तो राइट नाउ वॉट एवर द COVID-19 वैक्सीन आर कमिंग, they are inactivated or weakened virus vaccines, okay, which use a form of virus that has been inactivated or weakened, so it does not cause disease, but it generates an immune response. This is what I was talking about. The immune response generate karna is basically our body getting used to that virus and our body creating the weapons or creating that antibodies against that particular pathogen or antigen. Clear? This is how vaccines work. Any doubts here? इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से डिटेल में आपके फर्दर स्टैंडर्ड में यानी 12th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, वहां पर बहुत अच्छे से आएगा. डोंट वरी. बेसिक आइडिया, बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर है? Yes. Okay. Then you have protein based virus, or sorry, protein based vaccines which use harmless fragments of a protein or protein shells that mimic the COVID-19 virus to safely generate an immune response. तो प्रोटीन बेस्ड वायरस है, मतलब ये वाले वायरस में, ये वाले जो टाइप का वैक्सीन था, दिस टाइप ऑफ वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड और वीकेंड वायरस, इसमें एक्चुअल कोविड वायरस था बट वो वीक फॉर्म में था. ये वाले में प्रोटीन है, मतलब सिर्फ वो स्पाइक प्रोटीन है, जो वी या वाई शेप का जो भी प्रोटीन था सिर्फ वो डाला गया है और वो प्रोटीन इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर देगा. ओके, एंड दैट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेटेड will help in creating the antibodies for the upcoming original virus. Clear?
Can you see the screen? Hello, can you see the screen? No, sir. Wait, just a second. Yeah, now can you see the screen? Yes, sir. Yeah. So then we have viral vector proteins or viral vector vaccines, which use a safe virus that cannot cause disease but serves as a platform. Again, viral vector and inactivated virus are very much kind of similar, but right now what we need to know is about weak vaccines and protein-based vaccine. Viral vector vaccines is basically they add a vector. Vector is basically a delivery system. Just say for malaria, mosquito is a vector. Similarly, ये viral protein एक vector के form में हमारे body में inject किया जाएगा, and that is how we will create the immune response. Okay. Then there are DNA and RNA virus vaccines, which are more improved, or they know the exact DNA or the RNA sequence of that particular virus, and accordingly हमारा immune response को prompt किया जाएगा, and हमारा immune response वो तरीके से antibodies बनाएगा. So this is how vaccines are, okay, in a brief. And now we'll see what are the vaccines available right now in the market. We have Covaxin, which is inactivated vaccine, जो first type of vaccine था, and it is produced by Bharat Biotech. इसके भी 2 doses है. Covishield, that is कोरोना वायरस वैक्सीन, ये recombinant वैक्सीन है. अगेन ये टाइप ऑफ प्रोटीन वैक्सीन है. तो कोवैक्सीन अलग मैकेनिज्म पे काम करता है और कोविशील्ड अलग मैकेनिज्म पे काम करता है, बट दोनों का रिजल्ट मोर और लेस सेम है, दैट दे बोथ गिव अस सम काइंड ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट द वायरस. And this is the article of Times of India, which was published by Times of India, and this is from BBC. Okay. जो बाकी सारे कंट्रीज में क्या है and what kind of vaccines they are using. So in England they are using AstraZeneca. Okay, that is a viral vector or genetically modified virus, जहाँ पर they are using a genetically modified virus to create that immune response. Okay, 2 doses are also there. In USA there is Moderna, which is RNA vaccine, 2 doses. Pfizer RNA vaccine in Germany and England, Germany and USA, 2 doses. Then you have Russia का Sputnik 5 और Sputnik V, जो भी बोल रहे हैं न्यूज वाले. This is a viral vector. This is also 92% efficiency. ये और ये अभी इंडिया में लाने का बात कर रहे हैं. कब तक आएगा, कब तक हमें मिलेगा, कब तक हम वैक्सीनेटेड होंगे, आई एम नॉट रियली श्योर. बट जितना इंडिया का पॉपुलेशन है, आई थिंक सो इट कैन टेक अबाउट anywhere around 3 to 4 years for the entire India to get vaccinated, and that is a huge time, right? Let's see what is the current situation. This is the data which I think so you all must know. This is update. This is the data of 27th May. Obviously it keeps on changing every time. Till now India में there are 3 lakh plus deaths, okay, due to COVID. और ये डायरेक्ट डेथ है. ओके, देयर आर मेनी इनडायरेक्ट डेथ्स. मतलब कोविड ठीक हो गया मगर उनको किडनी फेलियर हो गया या उनको लिवर में इन्फेक्शन हो गया. बहुत सारे ऐसे डेथ्स भी है जिसको हम इनडायरेक्ट डेथ कहते हैं, तो वो इसमें हमने काउंट नहीं किए. ये डायरेक्टली जो कोविड से रिलेटेड डेथ है वो है. महाराष्ट्र ऑब्वियसली रैंक्स फर्स्ट. ओके, कंफर्म केसेस टिल नाउ is 56 lakhs. Obviously many of them have recovered, many of them have died, and this is the global number. Okay, the global number till now is 16 crores. Okay, obviously many of them have recovered. The date of recovery is not fixed, so I have not mentioned anything, but yeah, this is overall the data. Around 35 lakh people have died due to COVID. These are direct deaths worldwide. ओके, पैंडेमिक मतलब जब वर्ल्ड वाइड लेवल पे कुछ हो रहा है तो 35 लाख लोग मर गए इससे. ओके, एंड द नंबर इज स्टिल गोइंग ऑन, अब तक खत्म नहीं हुआ. और ये सिर्फ डायरेक्ट डेथ है. इनडायरेक्ट डेथ ट्रस्ट में बहुत सारे. यू मस्ट हैव हर्ड मेनी केसेस कि अरे उनको नॉर्मल था, हार्ट अटैक आ गया, बट कोई हॉस्पिटल में ले नहीं रहे बिकॉज कोविड टेस्ट हुआ नहीं था और उनका डेथ हो गया, उनको ट्रीटमेंट नहीं मिला, तो वो इनडायरेक्ट डेथ हो गया. तो कोविड से दूर दूर तक लेना देना नहीं था. बहुत लोग कोविड से रिकवर होने के बाद कोई और बीमारी से मर गए. So the situation is quite dangerous.
and this all things show how important it is to know about our health. Yeah, now let's see what is mucormycosis, जो काफी चर्चा में है आजकल. That is the black fungus. Okay, have you heard of this black fungus? सुना है किसी ने ब्लैक फंगस के बारे में इससे पहले? Yes, sir. Okay, do you have any idea what is it exactly, Vansh? Not really, sir. Okay, don't worry, you'll come to know today. So it is a type of mucor fungi. Okay, again जितने भी नाम हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनना, बिकॉज आपको जो चैप्टर 2 है दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें सारे फंगसेस के बारे में दिया हुआ है. ऑल्दो सेम फंगस के बारे में नहीं दिया जिससे हमें ये बीमारी हो रही है, बट वही फैमिली के दूसरे फंगसेस के बारे में दिया है. और ये ब्लैक फंगस ट्रस्ट में ये नया नहीं है, काफी टाइम से है, पहले भी होता था. ओके, इन जनरल ये फंगल डिजीज क्यों होती है उसके कुछ बेसिक रीजन है. फर्स्ट इज इफ यू आर इम्यूनो कम्पिटेंट, मतलब आप में इम्यून सिस्टम आपका कम है तो हो सकता है. इफ यू आर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, यानी ड्यू टू सर्टन थिंग्स या सर्टन डिजीजेस योर बॉडी इज फाइटिंग अगेंस्ट सम अदर डिजीजेस, सो योर immune system is down, which usually happens during any viral infection. हम वायरस को नहीं किल करते हैं, वायरस की वजह से जो बाकी सारी चीजें होती है हमें उन्हें किल करना पड़ता है, और वायरस को हमारा बॉडी किल कर देगा. ओके, तो ये सिचुएशन में हमारा बॉडी जब वायरस से लड़ रहा है तब हमारे बॉडी का आर्मी या हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक है. एट दैट टाइम दिस आर कॉल्ड एज अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म. अपॉर्चुनिस्टिक मतलब जो अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं तुम्हें बीमार करने का. ओके, सो दे विल कम व्हेन यू आर मोस्ट वल्नरेबल, जब आपका हेल्थ सबसे वीक होगा तब ये आएंगे और आपको इन्फेक्ट कर सकते हैं. ओके, विल लर्न मोर अबाउट दिस. इट इज अ टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन दैट कॉजेस ब्लैकनिंग और डिस्कलरेशन ओवर द नोज, ब्लड और डबल विजन, चेस्ट पेन, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज एंड कफिंग ब्लड. ओके, ये सारे कुछ कॉमन सिम्टम्स है. ओके, द नेम ब्लैक फंगस इज बिकॉज का जो सिम्टम है वो ब्लैक है, फंगस ब्लैक नहीं दिखता है, फंगस ब्लैक नहीं दिखता, उसका सिम्टम ब्लैक है. Okay, mucormycosis, mucoro यानी mucor fungus, myco, the term myco is related to fungi. Okay, and cis is process, so mucor से होने वाला फंगल प्रोसेस को हम कहते हैं mucormycosis. Okay, it is due to the exposure to mucor mold. Okay, mold is also a term related to fungus. This commonly found in soil, air and even in the nose and mucus of humans. So ये normally हर जगह पर है, बट हमें यूजुअली इससे बीमारी नहीं होगा. ओके, इट इंक्रीजेस इफ यू आर ऑन स्टेरॉइड. स्टेरॉइड्स मतलब अगर आप ड्रग्स ले रहे हो कोई पर्टिकुलर बीमारी के अगेंस्ट और उसमें जिंक है, so that can elevate the process of fungus. Also if you have too much of sugar as in diabetes है, तो हम सबको पता है फंगस जो है वो शुगर वाले सब्सटेंसेस पे, गीले सब्सटेंसेस पे रहता है. एंड if somebody is recovering from COVID या उसको COVID है तो उसको मास्क पहनना पड़ता है. So this part is always wet. If he is on oxygen के थ्रू कंटेमिनेशन आ सकता है. ओके, इसलिए बहुत सारे कोविड पेशेंट्स को ये डिजीज हो रहा है. दिस इज हाउ इट एक्चुअली लुक्स लाइक. इट अगेन आई एम टेलिंग यू, ये ब्लैक कलर का है इसलिए ब्लैक फंगस नहीं है, इसके जो सिम्टम्स है वो ब्लैक है. क्लियर? It looks quite pretty here, but trust me, it does not look pretty when you see it on something or somebody. Then you have white fungus जो होता है कैंडिडा फंगस की वजह से. कैंडिडा अल्बिकेंस नाम का एक फंगस है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट यू विल स्टडी इन चैप्टर 2 ऑब्वियसली. बट उसी के फैमिली का एक और फंगस है जिससे व्हाइट फंगस होता है. अगेन व्हाइट फंगस बोलो, येलो फंगस बोलो या ब्लैक फंगस बोलो, दे ऑल आर अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिजम्स, यानी अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं तुमको बीमार करने की. ठीक है, यू मस्ट हैव आल्सो हैड अपॉर्चुनिस्टिक पर्सन और अपॉर्चुनिस्टिक फ्रेंड्स इन योर स्कूल, जो ऐसे तो कभी बोलते नहीं, बट जब तुमको किसी ने सुनाया उस दिन आके आपको स्पेशली सुना के जाएंगे, हाँ तूने तो कॉपी करके ही पास हुआ होगा या समथिंग लाइक दैट, राइट?
So even these funguses are opportunistic. White fungus because the symptoms that they produce they are white. तो ये टंग के ऊपर white white spots create करते हैं. जैसे टंग के ऊपर पता है वो एक लेयर आ जाता है व्हेन यू डोंट क्लीन योर टंग, वैसे टाइप का स्पॉट्स आ जाएगा टंग के ऊपर और बक्कल कैविटी में, मतलब जो माउथ का ऊपर वाला पार्ट है पैलेट, वहां पर व्हाइट स्पॉट्स आ जाएंगे. द रीजन दे आर कॉल्ड एज व्हाइट फंगस. बोथ ब्लैक एंड व्हाइट फंगस, the infections were reported long before the COVID outbreak, but the number of cases has suddenly increased since the onset of second COVID wave. जैसे मैंने कहा फर्स्ट कोविड वेव के बाद भी बहुत लोगों को हुआ था, बट नंबर बहुत कम था तो रिपोर्टिंग नहीं हो रहा था. ओके, बट सेकेंड कोविड वेव की वजह से बिकॉज इम्यूनिटी कम है, बहुत लोगों को हो रहा है, इन्फेक्टिविटी ज्यादा है सेकेंड वेव का, इसलिए बहुत सारे लोगों को ब्लैक या व्हाइट फंगस भी हो रहा है. One can get infected by either of these fungal infection when one comes in contact with their spores present in the environment or by coming in contact with infected surfaces such as medical equipments used for COVID treatment like oxygen cylinders. इमेजिन करो ये एयर में है, ऑक्सीजन भी हम लोग एयर से ही बनाते हैं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से, उसमें गलती से अगर ये फंगल के स्पोर्स आ गए, अब वो ऑक्सीजन सबको दिया जा रहा है, ठीक है, उन पेशेंट्स को दिया जा रहा है जिनका बॉडी ऑलरेडी कोविड से लड़ रहा है, यानी उनके बॉडी में ऑलरेडी इम्यूनिटी कम है, दे आर इम्यूनो कम्पीटेंट, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, तो उनके बॉडी में वायरस को फंगस को फ्री एंट्री मिल गया, बोला अरे मस्त है. प्लस ऐड करो अगर वो कोई शुगर पेशेंट या डायबिटिक पेशेंट है तो वायरस तो हो ही रहा है, फंगस भी खुश हो जाएगा कि वाह इम्यूनिटी भी कम है इसका, शुगर भी मस्त है, इधर तो रहकर मजा करेंगे, पार्टी करेंगे. ओके, तो ये फंगस इन्फेक्शन हो सकता है. सिम्टम्स, इसके सिम्टम्स देखो काफी सिमिलर है कोविड से. लो ऑक्सीजन लेवल्स, चेस्ट पेन एंड कफ अपार्ट फ्रॉम व्हाइटिश पैचेस इन द ओरल कैविटी, व्हाइट डिस्चार्ज एंड स्किन लीजन्स. तो अगर आप फर्स्ट लाइन देखोगे, लो ऑक्सीजन लेवल्स, चेस्ट पेन और कफ, ये सारी चीजें सेम एज इट इज कोविड वाली है. यस और नो? कुछ भी डिफरेंस है इसमें कोविड के सिम्टम्स से? इसीलिए पता ही नहीं चल रहा है कि कोविड हो रहा है या व्हाइट फंगस भी हो रहा है साइड बाय साइड. एंड पर्सन टू पर्सन द सिम्टम्स कैन चेंज बिकॉज ये डिजीजेस बहुत नए हैं, फंगस वाले नहीं, वायरस वाले. ओके, तो अगर ये ओरल कैविटी में व्हाइटनेस है या व्हाइट डिस्चार्ज है तो नॉर्मल डॉक्टर बोलेगा कि हाँ ये शायद स्पेसिफिक किसी पेशेंट टू पेशेंट चेंज होता है उसकी वजह से आ रहा है, बट ही माइट नॉट नो और शी माइट नॉट नो कि इट ऑल्सो कैन बी बिकॉज ऑफ व्हाइट फंगस. COVID-19 पेशेंट्स विद लो इम्यूनिटी क्या कर सकते हैं? They need to control their sugar levels during COVID. स्टीरॉइड्स या कोई ड्रग तभी ही यूज करना है जब बहुत ही जरूरत हो. स्टीरॉइड्स में जो भी, जैसे मैंने कहा, जिंक या जो भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है, दे कैन एक्टिवेट द फंगल ग्रोथ. ओके, करेक्ट टाइमिंग पे करेक्ट डोज मिले, करेक्ट ड्यूरेशन पे. क्लीन स्टेराइल वाटर यूज हो ह्यूमिडिफिकेशन के लिए. आप सबको पता होगा, शायद सब लोगों ने स्टीम वाला घर पे खरीद भी लिया होगा. ड्यू टू ऑल दिस, स्टीम लेने से जाता है या स्टीम लेना बेटर होता है. अब सोचो वो स्टीम के पानी में ही फंगल स्पोर्स है, तो और तुमने स्टीम ले लिया मतलब तुमने डायरेक्ट एंट्री दे दिया उसको. और जब हम स्टीम लेते तब हमारा म्यूकस का लाइनिंग भी कम होता है, विच मीन्स हम उसको पैसे दे रहे कि जा भाई डायरेक्ट अंदर तक जा. ओके, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम यहाँ पर स्टरलाइजेशन और क्लीनिंग करें. प्रॉपर सैनिटाइजेशन ऑफ वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स इज द बेस्ट वे टू प्रिवेंट व्हाइट फंगस. ये बेस्ट तरीका है कि अगर हम वायरस को वायरस के वजह से जो होने वाला फंगल अटैक है उसको बचाना चाहते हैं, तो वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स को सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है. दिस इज हाउ व्हाइट फंगस लुक्स लाइक. दिस इज नॉट एग्जैक्टली व्हाइट फंगस, ये कैंडिडा का फंगस है जिसका मैंने जूम्ड अप इमेज लिया है. ओके, एंड दिस इज ऑब्वियसली द मोर एडवांस वर्जन. तो नॉर्मली ऐसा मस्त उजाला से ब्लू किया हुआ फंगस दिखेगा नहीं आपको. यू कैन सी दिस इज द हेड ऑफ फंगस, और यहाँ पर छोटे छोटे स्पोर्स होंगे जो स्पोर्स एयर में जाएंगे और इट कैन क्रिएट स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज. देन यू हैव येलो फंगस. येलो फंगस सबसे, आई कैन से, सबसे ज्यादा पोटेंट है और इसलिए सबसे कम हुआ है. बहुत कम केसेस रिपोर्ट हुआ है येलो फंगस के. इनिशियली डेवलप्ड बाय अ प्रेजेंस ऑफ मोल्ड. अगेन ये मोल्ड टाइप का फंगस है. दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन एनवायरमेंट. क्या कर सकता है? इसके जो सिम्टम्स है वो थोड़े से येलोइश है. ये बेसिकली लिम्फ या पस फॉर्मेशन क्रिएट करता है, इसलिए इसको हम येलो कहते हैं. द कलर इज बेस्ड बिकॉज ऑफ द सिम्टम. ओके,
अननेसेसरी फटीग यानी एक्सेसिव एक्सरसाइज करने की वजह से हो सकता है, रैशेस की वजह से हो सकता है, बर्निंग सेंसेशन ऑन स्किन की वजह से हो सकता है, डेंजरस हो सकता है, बट द फोकस शुड बी ऑन द प्रिवेंशन, हमें प्रिवेंट करना है, आसपास की चीजों को क्लीन रखना है। इट कैन बी सीवियर, देखो सीवियरिटी व्हाइट और ब्लैक में नहीं बोला था, येलो फंगस थोड़ा ज्यादा सीवियर है। ओके, its sheer development and spread in the body depends upon the prevailing medical and the physical condition of the patient. Same, immunocompromised, immunocompetent, sugar level high होगा तो ये फंगस लोग को पार्टी मिलेगा. Okay, they can infest you very easily, and this is how actually it looks. Again, this is the fungal. Okay, ये येलो कलर का है इसलिए येलो नाम नहीं है, इसका जो सिम्टम है वो पस फॉर्मेशन है, स्किन लीजन्स है, बर्निंग सेंसेशन है, वो येलो कलर का है, इसलिए it is called yellow fungus. I hope this is clear about the fungus and COVID part. Any doubts still here? Vansh, Varsha, Riya? No, sir. Riya? No, sir. Okay, now No, comes sir. the terms related to biology. Okay, all these terms you might have heard somewhere or the other, and I would want कि अब से आप ये terms use करो, मतलब आज से ही नहीं, as in when आपको जब ये terms relatively पता चलेंगे, try to use this terms. Okay, और इससे related मैं चीजें आपको बताऊंगा जो आपने सुनी हुई है. Myco is related to fungus, mucormycosis, just अभी सुना, तो जब भी term आएगा myco, the word myco is for fungus. ठीक है, इसे हिंदी में हम फफूंद कहते हैं. ओके, तो बहुत सारे वर्ड्स का जो ओरिजिन है वो या तो ग्रीस से आएगा, या तो लैटिन से आएगा, या तो संस्कृत से आएगा. ओके, तो राइट नाउ जो हम बायोलॉजी या इन जनरल साइंस में लोग ग्रीक और लैटिन का ज्यादा यूज करते हैं, बिकॉज दे वर द वंस हु यू नो हु प्रोपोगेटेड द नॉलेज. ओके, तो माइको इज रिलेटेड टू फंगाई, फाइको इज रिलेटेड टू अल्गे, फाइकोमाइसिटिस यानी अल्गल फंगाई. ओके, फाइको अल्गे से रिलेटेड है. Then we have viro और viroid related to virus. Virus का मतलब होता है poison by the way. Okay, venom या poison होता है इसका मतलब. Bacteria related to bacteria. Simple. Morphology is the external feature. Very 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 important. In fact आपका एक चैप्टर का टाइटल है ये morphology of flowering plants. Morphology and external feature. तो अगर मैं external feature देखूं ह्यूमन बॉडी का, तो hair, ears, hands, legs, तो वो सारी चीजें morphology में आएगी. एनाटॉमी इज इंटरनल स्ट्रक्चर की इंटरनली हम कैसे है. ठीक है, टिश्यूज कैसा होता है, या यू नो ऑर्गन्स कैसे है, लेयर्स क्या क्या है. द टर्म आइटिस, अगर आगे लाइन मार के आइटिस लिखा है विच मींस दिस इज अ सफिक्स. ओके, द सफिक्स आइटिस मींस इन्फ्लेमेशन. तो यू माइट हैव हर्ड अबाउट कंजक्टिवाइटिस. कंजक्टिवाइटिस मतलब जिसको हम नॉर्मली कहते हैं आंख आना, सोर आइज. ओके, so conjunctiva is the layer which is present below the eyelid. तो आंखों के ऊपर का लेयर नहीं है, जो eyelid है ना, eyelid के पीछे वाला लेयर है. so this is my eyelid, यहाँ पर जो पिंक वाला लेयर है that is conjunctiva, और यहाँ पर inflammation होता है. okay, sorry for the background noise. तो वो वहां पर inflammation होता है, that inflammation is called conjunctivitis. okay, similarly you have arthritis, कि अगर घुटने में प्रॉब्लम हो रहा है, आर्थरस यानी जॉइंट्स में प्रॉब्लम होता है, तो उसको हम कहते हैं आइटिस. ओके, तो व्हेनेवर यू हियर द टर्म आइटिस इट ऑलवेज मींस इन्फ्लेमेशन. कूल. देन यू हैव इडिमा. इडिमा का मीन मतलब होता है स्वेलिंग. सी, इडिमा के दो स्पेलिंग है, ओ ई बी आएगा और सिर्फ आप ओ को एलिमिनेट करके ई डी ई एम ए भी लिख सकते हो. ओके, एक ब्रिटिश इंग्लिश है, एक अमेरिकन इंग्लिश है, वॉट एवर सूट्स यू, आप दोनों लिख सकते हो. इडिमा इज स्वेलिंग, तो मिक्स इडिमा यानी मसल का स्वेलिंग हो गया, इंटरनल ऑर्गन्स का स्वेलिंग हो गया. ओके, साइड इज टू किल्ड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड. ओके, सुसाइड मतलब खुद को किल करना, दैट इज सुसाइड. तो कभी भी वर्ड आता है साइड, इट ऑलवेज मीन्स टू किल. स्टैटिक इज टू स्टॉप. ओके, बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब वो बैक्टीरिया का ग्रोथ रोकता है. ओके, पेस्टोस्टैटिक ऑल्दो हम यूज नहीं करते, हम यूजुअली किल ही करते हैं उनको, बट स्टैटिक का मतलब होता है कोई भी चीज जो ग्रोथ को रोकती है. कार्डियक रिलेटेड टू हार्ट, ऑब्वियसली कार्डियोलॉजिस्ट. ओके, कार्डियक सर्जरी, कार्डियक अरेस्ट, ऑल द थिंग्स आर रिलेटेड टू हार्ट. हिपैटो,
हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट जो आप पढ़ोगे डाइजेशन वाले चैप्टर में, ओके, हिपैटो इज रिलेटेड टू लिवर। तो जब भी हिपैटिक सेल्स, हिपैटिक लिवर, ये सब हिपैटिक हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, हिपैटो इज रिलेटेड टू लिवर। देन डर्मा, डर्मा का मतलब होता है आउटर कवरिंग या बेसिकली स्किन, ठीक है। तो लीफ में हम पढ़ते हैं एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस। एपिडर्मिस इज आउटर लेयर, सो वेरेवर यू फाइंड डर्मा दैट इज रिलेटेड टू स्किन। तो डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा प्रमाणित, डर्मेटोलॉजिस्ट इज द डॉक्टर ऑफ स्किन, स्किन स्पेशलिस्ट। पल्मोनरी is related to respiration or lung basically. Then you have optic or ophthalmic which is related to eyes. You have osteo, osteo का मतलब होगा related to bones, आपके बोन से related होगा osteo. Then arthro, arthro is related to joints as I told you. Arthritis is inflammation of joints. Then you have myo, myo is related to muscles. Auditory is related to ear, hearing is called auditory. Auditorium, okay, that also comes from the ability to hear. Gustatory related to tongue. There are gustatory receptors on the tongue which helps to taste a flavor. Okay, there are different types of flavors: sweet, salty, sour, sweet. Olfactory related to smell. Okay, we have olfactory receptors inside the nose and the end is on the brain, so we can smell everything and we can recognize कि वो किस चीज का स्मेल है। जैसे मैगी बनता है तो हमको स्मेल से पता चल जाता है अच्छा ये मैगी है, बिकॉज हमारे ब्रेन ने मैगी के स्मेल को रजिस्टर कर दिया है। तो जब वो स्मेल आएगा हमारा नोज सेंस कर लेगा कि अच्छा ये तो मैगी है। दैट इज ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्शन। न्यूरो इज रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम या ब्रेन, राइट। न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजिस्ट, ये सारे डॉक्टर्स जो स्पेशलिस्ट है दे आर रिलेटेड टू ब्रेन और रिलेटेड टू नर्व्स यू कैन से। Chondro is related to cartilage. So we have a type of fish, they are called as bony fish and cartilage fish. So osteocyte is bony fish and chondrocyte is cartilage fish. Cartilage fish में शार्क आता है, तो इनका जो स्केलेटन होता है वो कार्टिलेज से बनता है। ये भी आप पढ़ोगे चैप्टर 4 में, ओके। तो जहां जहां कॉन्ड्रो आएगा विच मीन्स वहां पर कार्टिलेज से रिलेटेड है। कार्टिलेज इज व्हाट योर ईयर इज मेड अप ऑफ or your tip of nose is made up of. Then you have heme. Heme is a compound, okay, which is made up of iron and it is related to blood. तो जहां पर भी hemoglobin आएगा या hemosil आएगा, hemolymph आएगा, which means it is related to blood. Gyno is related to females, ठीक है। Gynoecium, female part of the flower. Gynecologist, ठीक है। Gynecologist is the person who does the pregnancy related, who solves your pregnancy related issues, okay। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्पेशलिस्ट होता है गायनेकोलॉजिस्ट। देन यू हैव एंड्रोशियम व्हिच इज रिलेटेड टू मेल पार्ट। एंड्रोलॉजी, ओके, स्टडी ऑफ द मेल गैमेट। कार्सिनो और ऑन्को रिलेटेड टू कैंसर, सुना होगा आपने कार्सिनोमा, कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस, ऑल दिस थिंग्स आर रिलेटेड टू कैंसर। देन गैस्ट्रो related to alimentary canal. Then chronic और acute, ये दो चीजें हमने याद है SARS CoV-2 में पढ़ा था acute के बारे में, ओके। acute का मतलब क्या होता है, ऐसा बीमारी जो तुरंत हो जाता है या जिसको सेट इन होने में टाइम नहीं लगता है, ओके। whereas chronic diseases are the diseases which take a lot of time to set in, ओके। जैसे टीबी हो गया, टीबी ऐसे तुरंत नहीं होता है। लिवर सिरोसिस, लिवर सिरोसिस लिवर का खराब होना ड्यू टू एक्सेसिव अल्कोहल, वो ऐसे तुरंत नहीं होता, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। एड्स टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू सेट इन, ओके। सो ऑल दोस डिजीजेस व्हिच टेक अप अ लॉट ऑफ टाइम टू सेट इन, दे आर कॉल्ड एज क्रॉनिक डिजीजेस। एंड देन देयर आर सर्टेन डिजीजेस व्हिच हैपन वेरी क्विकली, ठीक है, तुरंत हो जाती है वो डिजीजेस, दे आर कॉल्ड एज अक्यूट डिजीजेस। क्लियर? Yes. Okay. So if you want I will just send you the image or maybe this slide कि किस तरह से normal terms है which you need to know. Although सिर्फ यही terms नहीं है that you will be learning, these are just the basic terms which you should know. Then this is how you will learn the diagrams, okay. This is
the most important part. The positioning, dorsal, you can see the upper part is dorsal, ventral, आगे वाला part is anterior, पीछे वाला part is posterior. So if you imagine our body, we walk, we are bipedal, तो हम ऐसे चलते हैं, हमारे लिए dorsal ये होगा, ventral ये होगा, ठीक है, anterior ये होगा और posterior पैर वाला feet होगा. कोई भी एनिमल है जो ऐसा चल रहा है तो उसका वो पार्ट जो स्काई की तरफ फेस हो रहा है दैट इज डॉर्सल पार्ट, जो बेली पार्ट जो जमीन की तरफ फेस हो रहा है दैट इज वेंट्रल पार्ट, हेड पार्ट जो आगे की तरफ फेस होगा दैट इज एंटीरियर एंड द टेल पार्ट इज पोस्टीरियर. ओके, सो दिस इज व्हाट आई हैव रिटन हियर. ह्यूमंस में थोड़ा सा डिफरेंट होगा, हमारे डॉर्सल ये नहीं है, हमारे डॉर्सल बैकबोन है. ओके, स्पाइनल कॉर्ड डॉर्सल होगा हमेशा कॉर्डेट्स का, और यानी नर्वस सिस्टम डॉर्सल होगा कॉर्डेट्स का, और सर्कुलेटरी सिस्टम वेंट्रल होगा. तो हार्ट आगे आएगा कॉर्डेट्स में और ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड पीछे की तरफ आएगा. क्लियर? सो वेंट्रल इज द पार्ट विच इज फेसिंग द ग्राउंड. ओके, डॉर्सल इज द पार्ट विच इज फेसिंग अप टुवर्ड्स द स्काई, एंटीरियर पार्ट विच इज फेसिंग इन द फ्रंट, पोस्टीरियर पार्ट विच इज फेसिंग द बैक. इजी? तो अगर मैं ये फोन देखूं, ठीक है, अगर ये फोन ऐसा है तो ये जो स्क्रीन पार्ट है ये हो गया वेंट्रल पार्ट, क्योंकि ये फोन मेरे जैसा चल रहा है, बाइपेडल है हमारे जैसा कोई एनिमल. ये हो जाएगा डॉर्सल पार्ट, ये हो जाएगा एंटीरियर पार्ट और ये हो जाएगा पोस्टीरियर पार्ट. अगर यही ऐसा कोई एनिमल है जो ऐसे चलता है, ओके, चार पैरों पे, ये है डॉर्सल, ये पार्ट है वेंट्रल, ये पार्ट है एंटीरियर, ये पार्ट है पोस्टीरियर. इज दिस क्लियर? Yes, sir. देन वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बहुत स्टूडेंट्स को, इंटर एंड इंट्रा. इंटर विच मीन्स बिटवीन टू एंटिटीज. इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है, याद रखो, इंटरनेशनल मैच. इंटरनेशनल मैच का मतलब होता है इंडिया और किसी और कंट्री का मैच. इंट्रा मतलब विद इन, तो बहुत बार लिखा होता है इंट्रा सेल्युलर स्पेसिस एंड इंटर सेल्युलर स्पेसिस. इंट्रा सेल्युलर स्पेसिस मतलब सपोज ये सेल है और इसके अंदर जो स्पेस है उसको मैं कहूंगा इंट्रा सेल्युलर स्पेस, मतलब सेल के अंदर, विद इन और इनसाइड समथिंग. और इंटरसेल्युलर मतलब सपोज ये एक सेल है, ये एक सेल है, इन दो सेल के बीच का स्पेस को मैं कहूंगा इंटरसेल्युलर स्पेस. दोनों में बहुत डिफरेंस है. इंट्रा इज विद इन एंड इंटर इज बिटवीन द टू. ओके, तो प्लीज जहां पर इंटर होगा तो समझना है कि वो दो चीजों के बीच के स्पेस की बात चल रही है, और इंट्रा मतलब वो एक ही एंटिटी के अंदर की बात चल रही है. क्लियर? Is this clear? Yes, sir. Riya, Yes, Vansh? sir. Yes, sir. Medial and lateral. Medial, as the name suggests, it is the part which lies towards the midline of the body, and lateral is the part which lies away from the midline of the body. ठीक है, तो मीडियल पार्ट में अगर मैं मेरे बॉडी का बात करूं तो मीडियल पार्ट में लंग्स आएगा, हार्ट आएगा, स्टमक आएगा, इंटेस्टाइन्स आएंगे, ठीक है, किडनी आएगा पीछे की तरफ से, और लैटरल पार्ट में आएगा हैंड, लेग्स, ये सब लैटरल है, मतलब वो बॉडी से दूर है, सेंट्रल लाइन ऑफ द बॉडी में नहीं है. स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल लाइन में है. तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है टू नो द ज्योग्राफी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ओके, और भी बहुत सारे टर्म्स है, आई हैव नॉट टेकन एवरीथिंग हियर. ओके, वरना फिर तुम लोग यही सब सुन के पागल हो जाओगे. तो आई हैव जस्ट केप्ट इट वेरी ब्रीफ कि क्या, एंड दिस आर द टर्म्स. आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई भी टर्म होगा जो आपने शायद बिल्कुल ही ना सुना होगा. You might have heard this term somewhere or the other, but right now what we aim to do is कि आपको ये terms को और ध्यान से समझना है, and your base should be clear. Okay, see this again as a reference material. Okay, caudal is also called for tail. Cauda is for tail, so caudal भी कहते हैं. तो जो tail part is caudal, ठीक है. Head part is cranial. Cranial is brain और head part. Then you have posterior और dorsal part, anterior और ventral part. Okay, हमने जो किया है वेंट्रल, हमने वेंट्रल यहाँ था, डॉर्सल यहाँ था, हमने एंटीरियर यहाँ पे रखा था, पोस्टीरियर यहाँ पे रखा. यहाँ पर बिकॉज दे हैव एडेड क्रेनियल एंड कॉर्डल, इसलिए दे हैव इंटरचेंज द अदर टू. प्रॉक्सिमल इज टुवर्ड्स द बॉडी, डिस्टल इज अवे फ्रॉम द बॉडी. तो शोल्डर वाला पार्ट टुवर्ड्स द बॉडी है, ये वाला पार्ट बॉडी से दूर है, डिस्टल है, डिस्टेंट है. ओके, मीडियल पार्ट
सेंट्रल ऑफ द बॉडी, लैटरल पार्ट बॉडी से जो दूर होगा वो, ये हिप वाला रीजन प्रॉक्सिमल होगा, टो वाला रीजन डिस्टल होगा. इजी. Yes, sir. Okay. There is just 2 more slides, but I think so the session will be over soon. So I just don't want to wrap up that 2 slides quickly. So what we'll do is I'll end the session here. Please join. It will take hardly 5 to 7 minutes, and then we'll be done for the day. Okay. So please join the next session. Yeah, can you see the screen? Yes. Okay. Now let's see the book or the syllabus. Okay. Have you got the books? Do you have the books? Vansh, Riya? No, sir. Okay, don't worry. No, sir. I'll send you the PDF, and when things get normal, you can definitely buy it. Make sure that before the next class you have the PDF. Okay. By the end of the day, I'll make sure that I'll send you. But even if in case if I forget, just text me. Okay, I'll just send you the PDF chapter wise so that you have the material. You can just go through it. Okay. This is your 11th standard textbook PDF, the index page. If I say biology, if I just compare bio, physics and chemistry, biology is what students usually like because easy है, scoring है. But जो भूल जाते biology बहुत ही ज़्यादा बड़ा है. Biology is huge. It is massive. Okay. Just see the number of chapters you have in the 2 years. Okay. There are 38 chapters. Okay. And 10 units. बाकी सब subjects भी बड़े हैं, but biology is much more greater than physics and chemistry. Content wise. Okay. Also, if you go anywhere, maximum lectures you will have of biology. Okay. Here also we'll have to take minimum 3 days a week biology for you guys. Only then we can complete the syllabus genuinely. Okay. एक एक वर्ड एक एक लाइन हम लोग तभी पढ़ सकते हैं बिकॉज बायोलॉजी में एनसीईआरटी बुक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. एवरीथिंग कम्स फ्रॉम दैट बुक एंड द बुक नीड्स टू बी डन थॉरली. फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, एनसीईआरटी बुक में इफ यू नो द कॉन्सेप्ट यू कैन मूव फॉरवर्ड. यहाँ पर यू नीड थरो रीडिंग. ट्रस्ट मी, पीपल हु क्रैक नीट, जो लोग को रैंक आता है, दे हैव एटलीस्ट डन एनसीईआरटी बुक्स 12 to 14 टाइम्स. हर एक वर्ड उन्होंने रीड किया है. सोचो कितना ज्यादा पढ़ा होगा. Okay, they in fact know the page number as well. Okay, I'll just show you the index what all is there. They have divided everything into unit. Okay, so for 11th class you will have 5 units, as you can see, unit 1, unit 2, unit 3, unit 4, unit 5, and for class 12th you will have 5 units. So इस तरह से they have divided the entire syllabus for you guys. Okay, and just see the number of chapters. Okay, we have diversity in the living world as the first unit. There you have 4 chapters: living world, biological classification, plant kingdom, animal kingdom. यहाँ पर पूरा डाइवर्सिटी पढ़ेंगे. सेकेंड यूनिट में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. यहाँ पर विल स्टडी मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स, स्ट्रक्चरल एनिमल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कॉकरोच वगैरह के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, दिस 2 सेक्शंस आर फुल ऑफ एग्जांपल्स. मतलब इतने एग्जांपल्स है that you will be tired writing every examples. Okay, and these chapters are very much easy, but hello, yeah, can you hear me properly? Yes, sir. Yes, sir. So this chapter are tiring chapter, easy chapter nonetheless, but there are too much of examples and examples याद करने पड़ेंगे. तो थोड़े से जो difficult type के नाम है वो यहाँ पर आपको मिलेंगे ये 2 यूनिट में. Okay. What we have planned for you guys initially is the living world, okay, which I'll be taking, and human physiology, say digestion and absorption, which Priyanka ma'am will be taking tomorrow. So we'll start with these 2 chapters first, and initially आपके वीक में जब जब लेक्चर्स होंगे, दोनों के लेक्चर्स होंगे, तो साइमल्टेनियसली 2 चैप्टर्स चलते रहेंगे आपके.
Then in unit 3 you have cell structure and function, where you learn about cell, the unit of life, different parts of cell, biomolecules. ओके, ये केमिस्ट्री वाला चैप्टर है, इसमें केमिस्ट्री में भी सेम चैप्टर है आपको सेम नाम से, बट उसमें केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा, यहाँ पर बायोलॉजिकल और एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा है. सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, one of the most trickiest chapter I would say, because there is too much of information given here and बहुत short में है. There are certain chapters which we will teach you more than what is there in the textbook, okay, because they are required for you to crack entrance exams, okay. Then you have plant physiology, where you have 5 chapters, okay. These 2 units, plant and human physiology, they are huge units. तो जैसे हम बोलते हैं, they are elephants of the entire book. Okay, so you can see in plant physiology there are 5 chapters, and this 5 chapters are tiring chapters. Okay, ये छोटे छोटे chapters नहीं है. Respiration, photosynthesis, plant growth, they are big chapters. Okay, then human physiology, you can see there are 7 chapters. Okay, all the chapters are although small, but the number of chapters are huge. So you have almost 350 pages in biology for your 11th class. Number of chapters 22. इमेजिन अगर आप एक वीक में एक चैप्टर भी करते हो तो इट विल टेक 22 वीक्स, दैट इज ऑलमोस्ट 6 to 7 months. और ये सिर्फ नॉर्मल पढ़ाई है, रिविजन, टेस्ट, वो सब अलग. इमेजिन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सिलेबस दैट यू आर गोइंग टू गो थ्रू. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट अर्ली. ओके, नॉट दैट अगर आपने लेट स्टार्ट किया तो होगा नहीं, बस आपको फिर टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा. यू विल हैव टू पुट दैट एक्स्ट्रा एफर्ट टू इट. ओके, plant physiology, you have transport in plants, mineral nutrition, photosynthesis, respiration, plant growth. ये photosynthesis और respiration जो definition अब तक हमने पढ़े हैं सिर्फ वही नहीं आएगा, cycles है इसमें. okay, I think so Varsha might be knowing about those cycles much more. ठीक है, कितना लिखवाया जाता है. Yes. okay, so these 2 chapters have too much of cycles, and these are quite different from your entire 2 years biology. तो ये थोड़ी अलग टाइप की बायोलॉजी, यहाँ पर थोड़ा अलग प्रिपरेशन लगता है ये 2 चैप्टर्स के लिए. ओके, देन यू हैव ह्यूमन फिजियोलॉजी, विच इज द फेवरेट मोस्ट यूनिट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, बिकॉज यहाँ पर ह्यूमंस के बारे में पढ़ना है. ओके, तो ये सबको पसंद आता है, बीट डाइजेशन, बीट ब्रीदिंग, बीट बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन, excretion, locomotion, everything is interesting, everything is new. See, in सब के बारे में you have studied in bits and pieces in your earlier class, but right now you will go in detail and will see what exactly it is and till what extent you need to study, because जब आप मेडिसिन करते हो, जब आप डॉक्टर बनोगे, तब यही यूनिट आपको होगा, यही पार्ट है जो आपको करना है. तब आपको फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन नहीं पढ़ना है, तब आप प्लांट किंगडम, लिविंग वर्ल्ड, मॉर्फोलॉजी, सेल, बायोमोलिक्यूल, ये सब चीजें नहीं पढ़ने वाले हो. दिस इज द यूनिट दैट इज going to be your syllabus for your upcoming 5 to 6 years. Okay, so this is the overall 11th standard syllabus. Then let's move to the 12th standard, 22 chapters as I told you earlier. This is the class 12 syllabus. Okay, here also you have 5 chapters as 5 units as I told you. Reproduction unit, where you have 4 chapters. Genetics and evolution, which you have never done earlier in your life, so ये सबसे नया unit होगा. Okay, I think so you have done slight bit of Mendel in your earlier class, तो वो थोड़ा सा यहाँ पर है. Biology and human welfare, biotechnology, again very new topic, कभी नहीं पढ़ा. Ecology EVS नहीं है, this is not your EVS. Okay, this is one of the most important units. This might seem अरे easy, अच्छा है ये वो, environmental issues के अलावा आपने कुछ नहीं पढ़ा है. So this is all something which seems very easy, but it is very tricky. So here you can see there are 16 chapters, 22 in class 7, 16 is in class 12. If you ask me personally, class 11th is much more difficult than class 12. You can see the change in syllabus. Okay, कहाँ 22 chapters, कहाँ 16 chapters. यहाँ पर chapters का length थोड़ा सा बड़ा है, तो अगर शायद 11th का एक chapter अगर 1 week में हो जाएगा, तो ये शायद 1 week में ना हो. Okay, let's see unit 6. You have reproduction in organisms.
reproduction in flowering plants, human reproduction, reproductive health. All the chapters are important. Needless to say, human reproduction ही एक ऐसा पार्ट है जो 11th में नहीं है, जो बाकी सिस्टम्स के साथ नहीं आता, उसको अलग से पढ़ा जाता है. जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन के बारे में जो आज हम डिस्कस कर रहे थे, हाउ वायरस हैज इवॉल्व्ड एंड हाउ वी आर इवॉल्विंग. Molecular basis, we'll learn about DNA, RNA, replication, transcription, translation. Genetics के बारे में, मेंडल के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, genetic diseases के बारे में यहाँ पढ़ेंगे. Then whatever immune system वाला part which was told to you, that we'll learn in this unit, this chapter, that is human health. Strategies, again too much of examples. Okay, certain parts are new that you don't know at all, you will be learning here. You have tissue culture, bit of tissue culture here. You have microbes. This also has very much names, tables. ठीक है, इसमें भी लिख लिख के पढ़ के याद करना है, बहुत सारा tables. Then biotechnology, you have 2 chapters. One is about principle and process, and the other is application. Okay, this is just the basic of biotechnology, but this basic also feels advanced because आपने कभी biotechnology के बारे में पढ़ा नहीं है, except apart from the definition. I don't think so और कुछ था आपको lower grades में. थोड़े से applications थे although, but techniques वगैरह you will learn here. Okay, we'll try to show you videos of how exactly biotechnology is and किस तरह से lab में काम किया जाता है, and all the vaccine production and all is from this chapter, biotechnology and its application. Okay, then ecology, you have organism and population, you have ecosystem, you have diversity and conservation, and you have environmental issues. Okay, environmental issues, I can say this is related to EVS, much more related to EVS. बाकी सारा टॉपिक EVS से रिलेटेड इतना सारा नहीं है, बिकॉज ये इकोलॉजी है. यहाँ पर साइंटिफिक चीजें और पढ़नी पड़ेगी. यू विल हैव डेमोग्राफिक, यू विल हैव डेटा, पाई चार्ट होगा, बायोडायग्राम्स होंगे, अलग टाइप का कॉन्सेप्ट है ये. ओके, जैसे बायोटेक्नोलॉजी है वैसे ये यूनिट, ये दोनों यूनिट थोड़े से different because you have not learned this earlier. So this is all about your syllabus of your 2 years, and I wish you guys all the best for this journey. Okay, and any doubts till here? We are done for the day. This much is enough. This is the last slide. Any doubts? Diya, Vansh, Varsha? No, sir. I hope you like the video or you like the presentation. Yes, sir. Yes, sir. Chalo. Next class, Priyanka ma'am will be taking. She'll start with human physiology wala unit, that is digestion and absorption, and simultaneously I'll be starting with living world. So right now आपको notes वगैरह नहीं बनाना है. Even if you want to make a note, okay, we'll tell you when to make notes. Just make sure the reason why 2 chapters will be going simultaneously is because if we don't do that, see what I want, मुझे fast भगाना नहीं है. Okay, we don't want to just 2x स्पीड पे जाके हमको खत्म नहीं करना है सिलेबस. हम चाहते हैं कि आपको अच्छे से चीजें समझ में आए, यू गो थ्रू इट और फिर हम आगे बढ़े. इसलिए we'll have more lectures than your other subjects. Okay, but we'll try to give the best we can, and that is why we'll have 2 chapters going on simultaneously. Okay, and that is what we have planned, and I hope you enjoyed the lecture, and we'll meet in next class. Chalo, bye. Bye, Thank you, sir. everyone. Chalo, I'll end the session. Bye.